हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखा था। अब हम देखने वाले वीनस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट हम देखेंगे ये वीडियो जिससे हमें थोड़ा सा समझने में मदद होगी। तो सी दिस वीडियो। Have you ever wondered why a stable salt, such as cobalt trichloride, combines with a group of stable, independently existing molecules, such as ammonia, to form new compounds like COCl3, 6NH3, COCl3, 5NH3, and COCl3, 4NH3 with a See this, the cobalt chloride trichloride molecule, they reacted with ammonia. We will change only this compound, we will not change, but you change the ammonia molecule. Your ammonia molecule 6, this is given to the different compound. Your ammonia molecule, use it the compound in 5, this is given to the different compound of di. Your ammonia molecule, you use it the 4, this is given to the different compound. This is the witness theory to tell about the how much effect you use it the solution and molecule. यू नो द कोबाल्ट इज स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट है, बट हम चेंज करें अमोनिया को, तो अमोनिया मॉलिक्यूल चेंज करने की वजह से हाउ मच चेंजेस वर द कंपाउंड हियर टू फॉर्म। सी entirely new properties. राइट, न्यू प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, बहुत ही अलग कंपाउंड हमें मिल रहा है। Alfred Werner, a Swiss chemist, after preparing thousands of new compounds and studying their properties, put forward a theory to explain the formation of complex compounds. And he's the Walner's theory of Alfred Werner is tell about how does the changes of compound, why it is changes, why it is changes of color, just one molecule changes the changes of effect of color. He is tell about the Werner's, or Werner's is told about the complex of compound. That theory is called as a Werner's theory. Okay. It was the first successful explanation for the phenomenon. The theory became famous as the coordination theory of complex compounds, which is also known as Werner's theory. His explanation of complex formation is based on some postulates. The first postulate is that the central metal atom or ion in a coordination compound exhibits two types of valencies, primary and secondary. The first point, he said that the center metal atom or ion or coordination compound exhibit two types of valencies. एक तो primary valency या तो secondary valency. Two types of valency they form. How does the formation of two types of valency? See this. While writing the structure of the metal complexes, the ligands that are linked by primary valency are shown by dotted lines, while those linked by a secondary valency are shown by thick lines. If a ligand satisfies both the valencies, then it is shown by a thick as well as by a dotted line. How does the identify the ligand of primary valency, ligand of secondary valency, and ligand of both the primary and secondary valency? First, we will see the metal and ligand bonding. We will dotted line this show in the primary valency, and the ligand by the secondary valency show the thick line. पूरी हमारी बॉन्ड लाइन जैसी होती है उस तरह से, और दोनों शो कर रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बॉन्ड फॉर्मिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी भी हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी हो रही है। दिस से द बोथ द लाइन, डॉटेड लाइन एंड थिक लाइन. ओके. And it is said to exhibit dual character. This is the dual character is the formation of primary valencies are ionizable and correspond to the number of charges on the complex ion. Secondary valency जो विम्स थ्योरी ने हमें बताया कि प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल एंड करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. जो प्राइमरी वैलेंसी उसके में नंबर ऑफ चार्जेस हमें मिलेंगे, और इट इज द करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हियर द फॉर्म. तो जस्ट हम देखेंगे फर्स्ट द प्राइमरी वैलेंसी. से दिस प्राइमरी valencies apply equally well to simple salts and to complexes, and are satisfied by negative ions. For example, the primary valency of 2 in COCl2 is satisfied by 2 chloride ions. That is the primary valency satisfy all the negative ions like chlorine, bromine. Okay, this all are those sulfur ions.
दिस ऑल आर द सी दैट द निगेटिविटी आयन द प्राइमरी वैलेंसीज शो द डॉटेड आयन। और हमें पता है कि मेटल हैज ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी कितने लिगैंड में होते हैं, 6 लिगैंड में होते हैं। जो अनदर लिगैंड द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी, मतलब ट्रैक कर रहे हैं कि वो भी बॉन्डिंग में आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी वैलेंसी। और दिस इज द इफेक्टेड ऑफ अनदर आयन। The primary valency of 3 in the complex CONH36Cl3 is satisfied by 3 chloride ions. In modern terminology, the primary valency corresponds to the oxidation number. The third ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टुलेट हमें क्या है कि क्लोरीन दे ट्राई टू द जॉइनिंग ऑफ बॉन्डिंग। थिक लाइन मतलब कन्फर्म बॉन्डिंग होती है, दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी। और डॉटेड लाइन जो भी बॉन्डिंग शो करते हैं मतलब इट्स ट्राई टू जॉइन, अगर वो जॉइन भी हो गया तो मत दे कन्वर्टेड इनटू द थिक लाइन। बट हियर दैट कौन ट्राई करेगा, अमीनिया ने ऑलरेडी यहाँ पे कोबाल्ट बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया, हमें क्लोरीन एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, दैट इज द हमारा काउंटर आयन। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और दिस इज द काउंटर आयन। तो काउंटर आयन रेडी टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग, so that is the primary valency. Okay, they showing here the dotted line is that secondary valencies correspond to the valencies that a metal atom or ion exercises towards neutral molecules or negative ions in the formation of its complex ions. See this एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम क्लोरीन अज्यूम कर सकते हैं जो हमारा कोबाल्ट था पिछले का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अमोनिया। दिस ऑल आर लिगैंड, दिस द जो हमें ग्रीन कलर में दिख रहा है दैट इज द लिगैंड ऑफ द अमोनिया अज्यूम करो। और दिस इज द एल आर द जो हमें पर्पल कलर में दिख रहा है दैट इज द क्लोरीन। दे फॉर ट्राई टू जॉइनिंग ऑफ द बॉन्डिंग, दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी। और जो हमें ग्रीनिश कलर में दिख रहा है दैट इज द सेकेंड थिक लाइन जो है ना, दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी। ही इज द जॉइनिंग, ही स्टार्टेड द जॉइनिंग ऑफ द, मतलब ये एक सिचुएशन ऐसे होगी कि ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो इसमें से पूरे के पूरे क्लोरीन मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो एक तो भी ट्राई करेगा और वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। वो किस तरह से देखो, every metal has a fixed number of secondary valencies or coordination number. For example, cobalt 3+, platinum 4+, and iron 3+ ions are recognized to have a coordination number of 6. राइट, ऑल द कोऑर्डिनेशन नंबर का उन्होंने बताया कि रिकॉग्नाइज होते ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कि कितने लिगैंड से, 6 लिगैंड से। Similarly, nickel 2+, copper 2+, and platinum 2+ ions have a coordination number of 4. ओके, जो कोबाल्ट का देखो, प्लैटिनम का देखो, Secondary सबका 6 valencies है, and then are nickel 4 is. non-ionizable. They are satisfied by neutral molecules or negative ions. Negative ions. So here the coordination complex is. The secondary valency is equal to the coordination number of the metal. For example, in the complex COCl3 6NH3, the 3 chlorides are held by primary valencies and the 6 ammonia ligands are held by secondary valencies. ओके, अगर वो अमोनिया चेंज करे, क्लोरीन चेंज करे तो वो वैलेंसी चेंज होती है। अगर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन और अलग वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी इज डिफरेंट वैलेंसी। तो देखो अगर अमोनिया रिएक्ट हो रहा है और 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा रिएक्टेड विद ट्राई टू जॉइनिंग ऑफ, दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी कितनी है हमारी, 3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है। ओके, प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी इज द थिक लाइन। The fourth postulate is that secondary valencies are directional. ओके, सेकेंडरी वैलेंसी का जो भी होता है दैट इज द डायरेक्शनल वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट डायरेक्शनल। Has a particular shape. और उसका जो कॉम्प्लेक्स रहेगा दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी, हमें पता है ना वो किस स्ट्रक्चर में है, किस तरह से है। प्राइमरी वैलेंसी इसका कंफर्म नहीं है ना, वो उन्होंने बॉन्डिंग फॉर्म की है कि नहीं की है, तो कंफर्म स्ट्रक्चर का नहीं है तो उसका शेप हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज द डायरेक्शनल कॉम्प्लेक्स ऑफ द पर्टिकुलर शेप हमें पता चलता है, बट प्राइमरी वैलेंसी का हम पर्टिकुलर शेप नहीं बता सकते। Why it is not explain the particular shape? Because they try to the formation of bonding. Okay. The number and arrangement of ligands in space determines the stereochemistry of a complex. अगर 6 ligand are joining with the one metal, the formation of octahedral complex. 4 ligand they are joining in the formation of a tetrahedral complex. And ज़्यादा इससे ज़्यादा और 4 इन स्क्वायर प्लानर में अटैच होगा तो दैट इज द स्क्वायर प्लानर।
The most common coordination number in transition metal complexes is 6. ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स में एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा. कितने कितने लिगैंड अटैच है? 6 लिगैंड अटैच है. And the shape is usually octahedral. राइट, इस तरह से दिखेगा. The coordination number 4 is also common. Let's here the 4 And coordination this number gives 1 2 3 और 4. यहाँ पे 4 अटैच है और वो अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है. यहाँ पे प्लेन ऑफ सरफेस का स्क्वायर प्लान इज डिफरेंट. इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, 4 ही रहेंगे. 4 लिगैंड यहाँ पे अटैच है, 4. बट स्क्वायर देखो, ये अबाउ द प्लेन अटैच है, बिलो द प्लेन अटैच है. दैट वाई ही फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. और ये प्लेन ऑफ सरफेस में एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में ही अटैच है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वायर प्लेन. तो दिस डिस्क्राइब द वेयर इज अटैचमेंट अबाउ द प्लेन एंड द बिलो द प्लेन. दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज फॉर्मेशन ऑफ 4. gives rise to either tetrahedral or square planar complexes. Understood? This postulate predicted the existence of isomerism in coordination compounds. एक सिस और ट्रांस. सिस में देखो दोनों साइड क्लोरीन और दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर है. दैट इज द सिस. मतलब थिक लाइन और डॉटेड लाइन दे आर द डिफरेंट साइड. लेफ्ट हैंड साइड और डॉटेड लाइन में जब सेकेंडरी बैलेंस हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा और प्राइमरी बैलेंसेस हमारा राइट हैंड साइड आएगा. तो दैट इज द सिस कॉम्प्लेक्स हियर फॉर्म. एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स दे आर अपोजिट विथ ईच अदर. मतलब प्राइमरी वैलेंसी दोनों मॉलिक्यूल्स आर द अपोजिट विथ ईच अदर. द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांस. सिस कैसे रहेगा? डिफरेंट डिफरेंट साइड में रहेगा, एक ही जगह. ये दोनों अपोजिट रहेंगे मतलब ट्रांस, और सेम पोजिशन में डिफरेंट अपोजिट अपोजिट रहेंगे मतलब एक साइड रहेंगे. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द सिस. देखो सिस किस तरह से हो रहा है. ये अमाया एक साइड है, ये एक साइड है, ये अपोजिट है. दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दे अपोजिट विथ ईच अदर है. अपोजिट है ना. दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी और दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी. तो इस तरह से ये दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ द वीरियन थ्योरी. जो एक्सप्लेन करना चाहता है वो इस तरह से. दैट इज द फोर्थ पोस्टुलेट. To distinguish between the two types of valencies, Werner introduced the concept of using square brackets to enclose the atoms that make up a coordination complex and which एंड दे एक्सप्लेन. मतलब हमें अभी पर फिर सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे. तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें? तो दे एक्सप्लेन वेरी इजीली. देन द ब्रैकेट दे फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन एंड द सेकेंडरी वैलेंसी हियर राइट डाउन इन द ब्रैकेट एंड प्राइमरी वैलेंसी इज राइट डाउन इन द आउटसाइड द ब्रैकेट. दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर आयन एंड दिस कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तो हमने ये पहले भी बताया. बट अगर हमें सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी में बतानी तो सेकेंडरी वैलेंसी इज राइट डाउन इन द ब्रैकेट एंड प्राइमरी वैलेंसी राइट डाउन इन आउटसाइड द ब्रैकेट. ओके, तो ये जो है दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी बॉन्डिंग है इन अ मेटल के साथ. और ये जो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी. यहाँ पे पोटेशियम के 4 मॉलिक्यूल दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है. और साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं मेटल को, इस मेटल को. तो दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी हियर द शो. ओके, are therefore not ionized. The postulates of Werner's coordination theory were actually based on experimental evidence rather than theoretical. देखो कलर ऑफ कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन दे डिफरेंट पोस्टुलेट दे एक्सप्लेन हाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कलर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड अनदर. तो फर्स्ट हम देखेंगे थ्योरी पार्ट जो एग्जैक्टली अभी हमने देखा है. तो फास्ट हम देखेंगे द फर्स्ट अटेम्प्ट. पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको समझ में आएगा. द फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नेचर ने जो भी बॉन्डिंग फॉर्म की है वाज बट द फोर्थ बाय द वीनर थ्योरी पोस्टुलेट वाई थ्योरी आर एज फॉलोज. मतलब नेचर बाय बॉन्डिंग हाउ जस्ट चेंजेस. तो फर्स्ट पोस्टुलेट उसने बताया है कि यूनिक मेटल सॉल्ट द मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसी. प्राइमरी आयोनाइजेबल और वन सेकेंडरी. ये हमने जस्ट देखा है. प्राइमरी वैलेंसी फॉर्म करते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड एज अ नॉन आयोनाइजेबल. उसका कुछ भी मतलब एग्जैक्ट नॉन आयोनाइजेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. पोस्टुलेट 2 हमने देखा था. द आयोनाइजर स्पेल कंसिस्ट ऑफ एंटायर विच सैटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल. लाइक एंटायर विच सैटिस्फाई द try to join it, and primary valence are generally satisfied by anion. anion से satisfied है. क्लोरीन नेगेटिव हमने जब बताया ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो क्या रहेगा उसकी अनायोनिक रहेंगी. मतलब उसमें निगेटिविटी चार्ज रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज अनायोनिक. एंड थर्ड पोस्टुलेट मतलब वो कौन से वैलेंसी में रहेगी? प्राइमरी. पॉजिटिव वैलेंसी कभी प्राइमरी वैलेंसी नहीं रहेगी. हमेशा प्राइमरी वैलेंसी किस में रहेगी? निगेटिव में. दैट इज द अनायन.
Then postulate 4 में the secondary coordination pair consists of entire which satisfy the secondary valency and or non ionizable, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा entire satisfy the ligand formation spherically फॉर्म में रहेगा ना, वो जो भी ligand अटैच रहेगा इस तरह से अटैच रहेगा ना, इस फॉर्म में रहेगा, लाइक इसी फॉर्म में, जैसे ये हमारा कोबाल्ट है, इसको अटैचमेंट स्पेरिकली अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट लिगैंड होंगी स्पेरिकली फॉर्म में इसमें रहेंगे, और जो भी प्राइमरी वाले रहेंगे वो आउटसाइड द ब्रैकेट रहेगा। तो इस तरह से अटैचमेंट होगा, दैट इज द प्राइमरी आयोनाइजेबल वैलेंसीज। देन द नेक्स्ट थर्ड, द सेकेंडरी वैलेंसी आर द मेटल आर फिक्स satisfied by the either anion or neutral ligand, number of secondary valency are equal the coordination number, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जितनी अटैच रहेगी दैट इज द वो मेटल का क्या रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसका अमोनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, हमें ये अटैचमेंट 6 है ना कोऑर्डिनेशन स्पीयर का, तो कोबाल्ट का 6 रहेगा, बट ये भी तो 3 है, आयोनाइजेबल प्राइमरी स्पीरी, दे आल्सो बी अटैचमेंट ट्राई टू तो जॉइनिंग ऑफ बॉन्डिंग। द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द फिक्स स्पाइचल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन टू स्पीयर अट्रैक्शन इन द कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, तो ये रहेगा हमारा प्राइमरी, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और ये अटैचमेंट दिस इज द सेकेंडरी अटैचमेंट रहेंगे, और प्राइमरी स्पीयर में कहाँ रहेगा, ये आउटसाइड द ब्रैकेट रहेगा, इस साइड लिखा रहेगा, ये उस साइड, बट आउटसाइड द ब्रैकेट रहेगा, दैट इज द, ये विलियम्स थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया। अंडरस्टूड हाउ डे दे एक्सप्लेन टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बॉन्डिंग रहेगी और किस तरह से दे फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करेगा, जस्ट हमने देखा अभी स्ट्रक्चर में। व्हेन 4 कोऑर्डिनेशन ग्रुप अटैच होगा तो द मेटल आयन द कॉम्प्लेक्स विद फॉर द स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल, वो डिपेंड, वो अबव द प्लेन अटैच है या बिलो द प्लेन, तो टेट्राहेड्रल फॉर्म करेगा, या प्लेन ऑफ सरफेस में अटैच रहा तो वो क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर प्लानर। अंडरस्टूड विलियम्स थ्योरी।